हेलो अभिषेक, आवाज आ रहा मेरा? हेलो हेलो अभिषेक। हेलो। हाँ, मेरा यस वॉइस आ सर। रहा है? वॉइस आ रहा है? यस सर। आज ठीक है, ओके। सो अब तक हम लोग कल के लेक्चर में आई हैव कवर्ड अबाउट द सोलर एनर्जी मिशन और रिन्यूएबल एनर्जी इम्पैक्ट, इंटरनेशनल cooperation regarding the solar energy point of view, and how India will sustain with the targets as the new targets set up by the new government. Regarding that, we have to increase the our production, means manufacturing, particularly for the matching of this target. Like that, once 100 gigawatt is a big target, India cannot have that much capacity for the manufacturing. So we have to increase. Still, we are in 2 to 3 gigawatt power panel production. That 10 gigawatt more going to add on in that, and Indians industries are going to do that. So slowly, we will also increase the potential for such kind of manufacturing, and then we will have more option by the renewables. Okay. So overall, we have seen the history use of non-fossil fuel, yeah, non-renewables, and then fossil fuel waste, and then what are the disadvantages. There's that. So overall, we are having the problem solutions, and for solve such kind of problems, we have to go for the renewables. So potential solution for the environmental problems, basically renewable energy technology. So we had seen the whole world is facing problem regarding the COX, SOX, greenhouse gas emissions, ozone layer depletion, glacier melting, ocean level increase, like that. So no one want to use. And second thing is that whole world is also facing energy security. Means we want to preserve the sources longer, and we have to manage up to the optimized value. Means manage with the minimum. So then we can have the energy which is based on the fossil fuels or renewables, then we can keep sustain longer, and we will use that energy whenever it's required actually. So renewables free of cost is available, so there is no issue. Like the solar radiation is falling the earth every day, so that's not a big deal. And regarding the wind energy, 24 hours it's available as per the potential, so we can also use it. And then third is the biomass. So overall, the problem related to the environment challenges, then the solution is only the renewable energy technology implementation, energy conservation. And for the transport sector, you have to reduce the gasoline. That means we are not saying that stop to use that, but we are saying that you have to increase the percentage of the electric vehicles, fuel cell operated cars, vehicles, biofuels operated vehicles, or mix the biofuels in the gasoline, like that biodiesel for the diesel and ethanol, methanol, butanol in the petrol. As the government policy in India now, the 10%, I think 20% हो गया है, 20% right now. Let we have to check. Okay, storage technology, and then coal cleaning technology is also very important. If you are not cleaning the coal, and directly that coal is going to feed into the burner or in the furnace, and then you will have some problem. So then second thing is that the thermal pollution is also there. Thermal pollution is also there. So that thermal pollution, how to reduce? Anybody having idea? Raise the hand. कौन है क्लास में देखें? Anybody? उमंग किधर है? उमंग वाजपेयी।
उमंग आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ बताओ। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? वॉइस कट गया था मैंने। अच्छा एंड सर वो हैंड रेज करने का ऑप्शन है नहीं इसमें शायद। अच्छा, अभिषेक से पूछते हैं, वहाँ क्लियर है वॉइस। अभिषेक, यस सर। हाँ बताओ। सर थर्मल पोल्यूशन। हाँ, सर मतलब वाटर बॉडी का सडन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है you कोई। you see the thermal pollution is basically coming from the industry, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और वो थर्मल पोल्यूशन जो है एटमॉस्फेयर में जाता है। जो कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं या जो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है जहाँ स्टैक लगा हुआ है, so they have to burn the source and then the gases will go out, COX, SOX, NOx, and those gases are also having temperature. So that temperature create the thermal pollution. So we have to reduce the thermal pollution. Now, as you are an engineer, then what you will do with that? यस सर। Hmm. सोचो थोड़ा, इंजीनियर वाला दिमाग लगाओ। सर रिपीट कर देंगे एक बार वापस। थर्मल पॉल्यूशन जो है फर्नेस जितनी भी इंडस्ट्रीज में है वहां से जो COX, SOX, NOx निकलता है एटमॉस्फेयर में जाता है, दैट्स ग्रीन हाउस गैसेस आफ्टर बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स, दैट्स आल्सो कैरी द हीट, हाँ सर। दैट्स व्हाई देयर इज अ थर्मल पॉल्यूशन आल्सो। सर क्वेश्चन क्या है मतलब? तो कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल दिस? सर मतलब वही है कि इंडस्ट्रीज के सामने जो वाटर बॉडीज है उसको हटाए। अच्छा, वाटर बॉडीज के सामने जो इंडस्ट्री है उससे क्या होगा? आप अपना प्लांट का कैपेसिटी कम कर देंगे क्या, या कोल बर्न करना कम कर देंगे क्या? आपको तो कोल और बर्न करना ही है क्योंकि पावर प्रोड्यूस करना है। यस सर, जो वाटर रिलीज हो रहा है सर इंडस्ट्री से उसको पहले ट्रीट करके मतलब रिलीज करे, डायरेक्टली रिलीज ना करे। हम्म, तो उसमें क्या कर सकते हैं? नाउ यू सी द हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़े हैं पूरे 2 सेमेस्टर, दैट हीट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। राइट नाउ द cold weather is going on, okay? If you have that heat, you can manage your house. Heat management means thermal management with the support of such kind of heat which you are going to waste. यस कैसे होगा possible? Suppose you are living in an area where you are having a power plant, and power plant is like that. There is a unit of the power plant and then there is a colony. In the colony, the power plant managers, officers, staff, attendant, everybody is living over there, okay? So in winter season they have to burn the electricity to manage the thermal load. However, they are releasing lot of thermal pollution. So that thermal pollution, whatever was going to release, that can just turn to their sector, residential sector, and then with the proper management that can reach to door. And in winter season, there is no use of the electricity. Automatically, you will save electricity, and then you will save the thermal pollution also. Thermal pollution basically that water treat through the bodies and then going to discharge into the river. यस सर। And second thing is that the hot air is going to the atmosphere, which is also not good. That hot air is also having heat, and that heat is also very at good temperature. तुम लोग हीट ट्रांसफर पढ़े हो सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में? यस सर, थर्ड सेमेस्टर में। हीट एक्सचेंजर पढ़े थे? हाँ सर। क्या होता है? सर
कोई हॉट फ्लूइड अगर मतलब को अंदर भेजते तो वो कोल्ड फ्लूइड मतलब एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लूइड के बीच में। As the name is heat exchanger, means to exchange the heat, the device is called heat exchanger. उसमें हीट एक्सचेंज होता है, एक तरफ हाई टेम्परेचर है, एक तरफ लो टेम्परेचर है, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, ये सब होते हैं. You know very well LMTD is very important for that calculation. Q is equal to Q U LMTD delta T वाला जो फॉर्मूला है. हाँ सर। है ना? तो अब हीट एक्सचेंजर थ्योरी यू कैन अप्लाई हियर. जस्ट गेस. सर बहुत सारी जगह कूलिंग टावर्स भी होते हैं जो कूल कर देते हैं सर। कूलिंग टावर इसीलिए तो होता है. जस्ट वो पेपर है क्या? अरे इसको ऑफिस में दे दो, ऑफिस में दो प्रदीप को. हाँ, और सुनो 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 सुनो, ये भी लेके जाओ. जस्ट मिनट बेटा, ये भी देना प्रदीप को, दोनों चीज दे देना, रख लो सभी. और सुनो ये 50 प्रदीप को. प्रदीप, ठीक है बेटा. हाँ, तो नाउ यू जस्ट थिंक अबाउट इट. और क्लास में हीट ट्रांसफर में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है अभी इसमें मौजूद? सर सौम्यदीप। सौम्य कहाँ है? सौम्यदीप दत्ता. ओके, आई एम गोइंग टू हिम. यस सौम्यदीप. सौम्यदीप आवाज आ रहा है सर? हाँ. Yes, sir. इसको अभिषेक को ऑफ कर देते हैं और तुमसे बात करते हैं. यस. तो तुम्हारा कहाँ गया सौम्यदीप? हाँ, तुम्हारा हीट ट्रांसफर बहुत अच्छा है सौम्यदीप. ठीक ठीक ठाक था सर. अच्छा A+ होगा ना, तभी तो उसने नाम लिया तुम्हारा, है ना? हाँ सर. हाँ, तो बेटा बताओ थर्मल पॉल्यूशन में हीट एक्सचेंजर कैसे यूज होगा? सर जो हॉट वाटर डिस्चार्ज होती है एफ्लुएंट इंडस्ट्री से, ओके तो वहाँ ओके पे कोई भी हीट एक्सचेंजर लगा लेंगे तो वो उसको ठंडा करके फिर डिस्चार्ज करेंगे वाटर बॉडीज. ओके. और हीट यूज करनी हो देन? हीट यूज करनी हो तो सर मतलब हीट एक्सचेंजर से ट्रांसफर करके जिसमें हीट पहुंचानी है तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे. So now come to the point regarding the thermal air pollution. How you will fit that? There are many companies dealing in it. थर्मल एयर पोल्यूशन. हाँ. सर तो मोस्टली इंडस्ट्रीज से सर वाटर बॉडीज आसपास की वो हो जाती है, का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो सर हमें उसी को कम करना होता है. वो कम हो जाएगी तो एयर पोल्यूशन भी कम हो, मतलब एयर का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा. So finally you are going to throw the heat somewhere where there is no use. You see, there is a industry, that industry is having at least 150, 200 employees in it, and they are burning the source to produce the steam. तो उसके लिए वो लोग कोल या बायोमास या इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी करते हैं to produce the heat, and that heat is going to out into the atmosphere. अगर कोल से है तो उसमें कोल से एयर SOx, SOx, NOx ये सब बाहर जाएगा. इस टैग के थ्रू देखते ना इंडस्ट्री चल रही है, ऊपर चिमनी से धुआं निकलता रहता है. इफ यू सी दैट द टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी गुड. सो इन बिटवीन यू हैव टू ट्रैप द टेम्परेचर. Near by the source the temperature is very high, and when that stack is going to the top and then slowly there is a distance, उसकी height होती है certain fits के पता चला कि 30 मीटर 70 मीटर 120 मीटर का स्टैक लगा हुआ है, वहां से आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है ऊपर. उसका एक रीजन ये है कि तो जो स्मोक है वो ऊपर चला जाएगा, जिससे कि नीचे रहने वाले लोगों पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल इम्पैक्ट इज ऑन द सोसाइटी. दैट्स क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग, CO2 greenhouse gases emissions basically, and that having temperature also. So that temperature can be controlled by the forcefully operated heat exchanger. You may have the heat exchanger over there in the chimney at different point, 2-3 heat exchanger you can have it, and there is a operated by the pump connection, and then you can pump the water
to the heat exchanger, and there is the spherical coils, and then that water will take that heat and then come back, and then that water can go directly to the वाटर रिजर्वायर, जो आपका वाटर टैंक है जिसको आपको इसमें मैस वगैरह में यूज करना है, एंड यू नीड द हॉट वाटर टू क्लीन द पॉट्स एंड पान्स. आपको एवरेज जस्ट 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पानी का चाहिए जहां पे आपको उसको क्लीन करना है. So then you just pass on that heat to this storage capacity of the water, and then water temperature increase. So heat from the chimney transfer to the water body, and then that water you are going to use into the mess to wash the pots and pans. So your purpose is solved. Without using the electricity, uh, your objective is completed. And second thing is that extra heat, if you have more heat potential, then you can again heat the water, and then that water can go for the cooking meals. सब्जी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए जो पानी लगता है, that water is itself having a temperature 60-70 degree centigrade, so you will need less amount of source. आप गैस यूज कर रहे हैं तो कम लगेगा, आप कोल यूज कर रहे हैं तो कम लगेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड यूज कर रहे हैं तो कम लगेगा. So overall it will save the price. Cost saving है. Second thing is that environmental point of view, you are contributing to the carbon credit business. You are saving the coal, you are saving the electricity. So electricity automatically saving the coal. So coal saving the carbon credits, COX, SOX, NOx. And then you can claim yourself like that with the help of these activities. I saved the thermal pollution as well as carbon credit earn. Okay. So such kind of thing, and many industries are doing this. This is very, very common. Okay. So एक चीज तो ये हो गया. Okay. So now कहाँ हैं हम लोग? Yes. So clean coal technologies, recycling, acceleration of the forestation means more plants. One of my friend in my town, he is loving plants too much, and he is having one foundation, and he having a big nursery. उसके पास एक बहुत बड़ा नर्सरी है, and he is providing plants to the schools free of cost. Every month he is going to the different convent, primary and government operated schools, and he providing them that plants. तो उन प्लांट्स को वो लगवाता है, and then he will make a documentary and post it on the Facebook that last month I did like that. And he also asked others, if you are loving the environment, loving the nature, then you can have the more plants, and plants you can get it from him. So he is doing a very good job regarding the environmental issues. Okay, so forestation is also playing a very good role, and then our lifestyle changing. Don't pollute too much. If we need to go somewhere else, so we should make a plan like that. 4-5 persons share the car together. It's not like that 5 persons are going to the same place from the same house, and 5 are using different vehicles. So you are contributing to the emissions basically. Okay, and public awareness is most important. You see, you have to aware the public, aware the society regarding such kind of issues, and that's very different. When I was in MPhil 1997, and I just started to learn the environmental issues, and then on Deepavali vacation I came back to my home, and my grandfather was at that time, he was every time burning the plastic, and then I told to my grandfather, इससे बहुत दिक्कत होगी. और कोई दिक्कत नहीं होती, हम सालों से ज्यादा पढ़ लिया है. And I asked many times, but he refused, and he still, उन्होंने किया. He burned the plastic every day. That was his habit. He just go to the back door of the house. We had 2 gates, front gate and back door gate, and both gate having the on the roads. So on the back door side, we just put the kachra and then waste item, and then the person of a municipality fellow, they will come. But before that, he burned the plastic, and smell was so bad. Everybody, neighbors also said that बाबूजी ऐसा मत करो, बहुत बदबू आता है इससे. So then he said, इसको burn कर दिया, that's over. And slowly that awareness now going up by the society.
अब लोगों को पता है, नाउ दे आर नॉट डूइंग. नाउ 97 से आज 3 and plus 23 years हो गया, and 2015-16 in my town also municipal corporation started the collection. Lorry is coming parallelly, food waste in this, kitchen waste in this. If you have the plastic, you can go into that section. If you are having the metal, then put your metal into that. So now everywhere such kind of projects are going on, and that lorry machine is coming with the siren. एक पर्टिकुलरली साउंड है, उसकी आवाज सुनते ही लोग आ जाते हैं अपने घरों से बाहर, और सब लोग अपना अपना कचरा निकाल के पहले से ही रखते हैं कि गाड़ी आने वाली है कचरे वाली. And that municipal corporation outsource that collection to the third party, and third party is a company, and that company collected the item, and then that company took that whole lorry. Every day 4-5 lorries are going to their projects जहां पे उनका लार्ज प्रोजेक्ट लगा हुआ है, एंड देन दे रिसाइकल. मेटल को सेल हो जाता है, प्लास्टिक में सेल हो जाता है रिसाइकलिंग के लिए, एंड देन क्लोथ्स वगैरह डिस्कार्ड हो जाते हैं, फूड वेस्ट को बायोगैस यूनिट में डाल देते हैं, एंड देन एवरीथिंग इज हैप्पी, everybody is too happy. And municipal corporation earn money, municipal corporation operated that model, and then lorry fellow, they got the salary. Municipal corporation fellow, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने फेलो होते हैं जो सफाई करते हैं गलियों की जाके. दैट्स टू रिस्की. एक तो बहुत ही बेकार काम है. सेकेंड थिंग इज दैट सो मेनी टाइम देयर इज अ डिस्प्यूट्स. अड़ोस पड़ोस में हो गया कि इधर का पानी उधर चला गया, उधर का पानी इधर चला गया. नाउ आई जस्ट लुक, नथिंग, नो इशू, एंड एवरीथिंग इज जस्ट क्लीन. आप अदरवाइज क्या होता था, पहले आप एक पर्टिकुलरली 10 घरों का कचरा जाके एक पॉइंट पर गिर जाता था. ओके, so like that, if there is a chauraya, and then the 4 gullies, that they will dump that whole garbage over there. Okay, and then the lorry will come, and then they will take it. So when they clean it, then you can see the marks. So on the road there is a marks and smell also, so you cannot stand over there. So now that process is gone, and very beautifully they managed such kind of collection. I had seen in Delhi, I had seen in my hometown, Bulandshahr, and I had seen in metro cities also. Slowly, such kind of model is going to use. And second thing is that government is putting main agenda to don't use plastic. Plastic पे कितनी बार बैन हुआ है? Just because of the environmental point of view. And lot of research already done and going on to just manage the plastic. Plastic को decompose करने का process अभी तक नहीं मिला है. Okay, so such kind of things are there. तो ये हो गया आपका. तो all kind of this, that everything is just conversion to the renewable energy sources. So use renewable energy sources and produce more power, so your pollution will reduce, and then your environment will clean. Okay, so now coming to the next, the renewable energy sources mean the biomass, wind, solar, hydropower, geothermal, ocean, and hydrogen. Such kind of things. And before going to start the next one, that we must know that what is the status of the worldwide. Okay, so worldwide, that renewable power capacity, not including hydropower, is 1437 gigawatt. That data is 2019, because you see now 2020 report came. So in 2020, the 2019 data is there. 2020's partial data can be available on different sites, but on report the 2019 data is the last one. Okay, so 1437 gigawatt power production by the renewables. Out of that, wind energy capacity is 651, solar PV is 627. I'm talking about gigawatt. Biopower capacity is 139, geothermal is 13.9, and concentrated solar power is 6.2, and ocean power is 0.5. That is given in the Renewable Energy Global Status Report 2020. I will provide you a slide also, so don't write anything. Okay, so now you come to the total capacity generation at the end of the 2019. So renewable power capacity
not including hydropower. China is number 1, India is number 4. In the biopower capacity, China is number 1, US second, Brazil third, India is 4th. Like that solar PV capacity, India is number 5th. CSP power technology, India is nowhere in the picture. Wind power capacity, India is 4th number, China is number 1, US is number 2, Germany is number 3, and India is number 4. Okay. And second thing is that annual investment. Annual investment means it's regarding the job. Investment होगा तभी industry में job मिलेगा. China invested number 1 in the solar PV as wind power and solar water heating system technology. तो चाइना ने 3 में नंबर 1 पोजीशन है और इंडिया है सोलर पीवी कैपेसिटी में नंबर 3rd एंड सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी में नंबर 3rd, इथेनॉल प्रोडक्शन में नंबर 4, यूएस इज नंबर 1 इन इथेनॉल, ब्राजील नंबर 2, चाइना नंबर 3, इंडिया इज नंबर 4 और विंड पावर में इंडिया इज नंबर 4 इन्वेस्टमेंट में. ओके, so that was basically that slide I will forward to Umang and then Umang will share that to everybody. Okay. Okay, so now come to the next point. Next point is that biomass. Okay, so I will take at least 10 or 8 to 10 lecture on it. I will take 8 to 10 lecture on it. And what is biomass? I will go by the bottom side. Jasdeep Singh. Jasdeep. Hello. Hello. Sohail Ahmed. Yes, sir. What is biomass? सर बायोमास सर सिंपली जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमंस का या एनिमल्स का, उससे सर जो एनर्जी बनती है वो सर बायोमास होता है सर, प्रोसेस करके. ओके, कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं सर? प्रोसेस का तो आइडिया. अच्छा, एप्लीकेशंस सर इलेक्ट्रिसिटी सर उससे नॉर्मली जनरेट कर सकते हैं सर एनर्जी. कैसे होती है? बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसके बीच में तो बहुत बड़ा गैप है, वो तो भरना पड़ेगा ना. कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी? कैसे जनरेट होती है भाई? सर पावर प्लांट से सर जब उसमें सर काफी मतलब सर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीटा पहले स्टोर करते हैं और फिर सर you see, just a minute, you are a engineer, right? इंजीनियर हो ना पेट्रोलियम के, है ना? तो ये सोचो कि जब प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो सबसे बड़ा फंडामेंटल तो ये है कि स्टीम रन होनी चाहिए. ठीक है, स्टीम बनेगा तो टरबाइन चलेगा, टरबाइन चलेगा तो पावर बनेगा, पावर बनेगा तो ग्रिड में जाएगा, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सोर्स. बाकी सब तो मैकेनिकल इंजीनियर्स बना लेंगे, ओके, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सोर्स की. और सोर्स है आपके पास कोल, बेसिकली वर्ल्ड वाइड. और कोल को यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि पॉल्यूशन निकलता है. और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है या नहीं थी, सो वी हैव टू यूज द कोल. और हम लोग पूरे वर्ल्ड में कोल को यूज करते थे और इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे. लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ तब अटेंशन आया कि अरे भाई ये जो कोयला यूज कर रहे हैं इससे दिक्कत है, और कोयले में भी कई क्वालिटी है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, रिगार्डिंग द कार्बन कंटेंट. तो coal is also having the calorific value variation. So if calorific value is good, then you can get the good amount of calorific value. ज्यादा होगी तो उससे आपका पानी का स्टीम ज्यादा बनेगा, और ज्यादा स्टीम बनेगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा. या ये कह सकते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन में लेस अमाउंट ऑफ केजी ऑफ द कोल और टन ऑफ द कोल नीडेड.
अगर कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है तो आपको बहुत कोयले की जरूरत होगी, जहां पे आपका 1 टन लगता था अब 1.5 टन लगेगा अगर कोयला बदल दिया तो। yes sir, एंड ओवरऑल यू आर रिलीजिंग द इमिशंस। और अच्छी क्वालिटी का कोल है तो इमिशंस कम है गैस के, और पुअर क्वालिटी का कोल है तो इमिशंस आर वेरी हाई। तो ओवरऑल इट्स ए मैटर टू द एनवायरमेंट। हम जो भी कुछ कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि हम जो है अदर सोर्सेज पे जाएं जहां से हमको इमिशंस ना होता हो। तो बायोमास इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। Whatever amount of energy is going to absorb during the process of the plant growth, the similar amount is going to release, and it's a closed cycle. बायोमास को बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बट देन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। So overall from this process we are getting the electricity. Okay, so biomass is basically the forest items, mill residue, agriculture crop and waste item, wood and wood chips, animal waste, livestock operation residues, aquatic plant, municipal and industrial waste. So such kind of parameter can set for the biomass. Now the second question is that biomass applications. तो बायोमास का एप्लीकेशन बताइए अब आप। कोल की जगह यूज कर सकते हैं प्लांट में। yes sir, सिंपली सर जैसे कोल को बर्न कर रहे थे उसी तरह सर बायोमास को बर्न करके भी सर हम लोग बट heat कोल produce- कोल कैलोरिफिक वैल्यू इज सो गुड एज कंपेयर टू बायोमास। yes sir, yes उसके कंपेयर में बायोमास को जब लाओगे तो आपको बहुत सारा बायोमास लाना पड़ेगा। तभी तो सर अभी तक यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, नहीं तो सर आसानी से हम लोग वुड उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वुड का कैलोरिफिक वैल्यू 16 केजी मेगा जूल पर केजी है, एंड कोल का आपका 16 टू 35 वेरी करता है। एंड कोल में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड हैं, इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट। जितना कार्बन कंटेंट अच्छा होगा उतना एनर्जी ज्यादा मिलेगा, एंड देन इमिशंस कम होंगे और एस कंटेंट भी कम होगा। अगर कोल से एश निकल रहा है, एश वाज ए प्रॉब्लम अर्लियर बट नाउ एश इज ए बाई प्रोडक्ट बाय द कोल पावर प्लांट विच आर इजीली एब्सॉर्ब बाय मैनी इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ब्रिक इंडस्ट्रीज है, सोप वाले लोग हैं, सब लोग उसकी एश कंटेंट को हाथों हाथ ले जाते हैं। Earlier, I have seen such kind of problem. I was in industry during my MPhil on-site training project. I had seen such kind of big problem. Every day, they had a problem. Okay, so biomass applications का use क्या है? चलो next पे जाते हैं। सिंह, क्या नाम है भाई आपका? हेलो, 2 बार सिंह लिखा हुआ है, नहीं है। शाश्वत, यस सर। हाँ बताओ सर किसके बारे में? भाई। तुम लगता है सुन नहीं रहे हो डिस्कशन, है? इतनी क्लियर वॉइस आ रही है तुम्हारी मेरे पास, मेरी भी जा रही होगी। बताओ क्या टॉपिक चल रहा है? शाश्वत, बोलो भाई। नो आइडिया। आई विल राइट योर नेम शाश्वत। नॉट अटेंशन इन द क्लास। ओके, शशांक पांडे। यस सर। हाँ बेटा, तुमको भी पता है क्या चल रहा है या तुम भी पूछोगे क्वेश्चन क्या था? नहीं सर, बायोमास चल रहा है सर, हाँ एप्लीकेशन। करेक्ट, बताओ। हाँ सर, बायोमास सर बहुत सब एप्लीकेशन है सर, लाइक बायोमास सर अगर रूरल एरियाज या वैसे एरियाज में सर बायोमास कलेक्ट करके सर बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, ओके इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है सर पेट्रोल वगैरह में सर। ओके, एंड सर बायोडीजल वगैरह भी यूज होते हैं सर, लाइक ठीक है। सर ऐसे ही था। फिर कुकिंग वगैरह में सर यूज हो रही है सर चीजें सर। ओके ओके, कच्चा पक्का तुमको कुछ मालूम है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हो थोड़ा बहुत। अच्छा, ओके।
चलो कोई बात नहीं, आई विल स्टार्ट नाउ। ओके, जैसे ही कोई मैसेज आता है मुझे लगता है तुम लोगों में से किसी का मैसेज है मैं इसलिए इसको ऑन करके रखता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, बायोमास में बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट एक बार बताओ कि अभी कितने परसेंट इंडियन पॉपुलेशन गांव में रहता होगा? अप्रोक्सीमेट 70 तो रहते ही इंडियन पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज। ठीक है, और इन लोगों को खाना बनाने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है? दे आर टोटली डिपेंड ऑन द लेडीज। सो लेडीज आर गोइंग आउट, collecting the wood, and then burn the wood in their home, in their kitchen area, and then using the traditional chula. Okay, using the traditional chula, and then their health down because lot of cox sox is inside the kitchen area, and that lady is preparing meal, so that lady inhale that smoke, वो जो धुआं है वो लेडी स्मेल करती है, एब्जॉर्ब करती है लंग्स में। सो देन दैट एवरेज एज ऑफ द लेडी इज गोइंग डाउन, विच इज नॉट गुड, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया, स्पेशली इन द साउथ एशियन कंट्रीज। सो व्हाट शुड बी द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट? सौरभ कुमार, हेलो। यस सर। हाँ सौरभ बताओ। सर सौरभ बताओ, यस तुमने क्वेश्चन सुना? यस। अप्रोक्सीमेट 60 to 65 गाँव में गाँव में है, यूज करती हैं वो मतलब जो काउडंग के होता है, टाइप का चीज चूल्हे पे, तो उनका एज एवरेज कम हो जाता है। वो उसको कहीं कहीं कुछ कंडा बोलते हैं, कहीं उपला बोलते हैं, कहीं काउडंग केक बोलते हैं, कहीं ड्राइड काउडंग बोलते हैं, जैसे काउडंग के। है ना। यस सर। और उनका चूल्हा भी सिंपल टाइप का होता है, ईंट का बना हुआ, ईंट के ऊपर पीली मिट्टी को गीला करके पोत देते हैं, दैट्स ऑल। बट समर में तो चूल्हा बाहर होता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्मोक जो है चला जाता है बाहर। लेकिन विंटर टाइम में और रेनी सीजन में वो चूल्हा घर के अंदर होता है, तो वो चूल्हा जो है प्रॉब्लम देता है उन लोगों को। धुआं दे रहा है। एक चीज तो ये कि एवरी डे दे कलेक्ट द वुड, sometime wood is available, sometime not. If not, then they have to cut the plants. So deforestation is going on for this. Second thing is that their health is going to down, and at below average age that lady is gone, which is not good for the society. So then what government did in the favor of such kind of problems? And this is related to biomass. गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? सर जगह जगह बायोमास प्लांट करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, अवेयरनेस कर रही है सर। एलपीजी प्लांट पे सब्सिडी मिल रहा है सर। वो अभी की बात है, अभी तो हम लोग बहुत एजुकेटेड हो गए, अवेयरनेस भी काफी अच्छा हो गया है। बट इफ यू गो बाई 20 years बिफोर, देन यू विल सी द एक्चुअल प्रॉब्लम। उस वक्त गांव का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 80% रहता था गांव में, and everybody was completely dependent on the ladies to cook the meal. Yes sir. तो गवर्नमेंट ने उस वक्त एलपीजी भी नहीं था सर पहले तो। एलपीजी पे तो मारा मारी था भाई। एलपीजी का कनेक्शन जब लिया था तो मेरे ख्याल से मैं हाई स्कूल में था या उससे कम में था, 87 या 86 की बात है। तो जब हमारे सिटी में एलपीजी कनेक्शन आया तो पहली बात तो हमने लिया ही नहीं, अवेयरनेस की बता रहा हूँ। So somebody nearby my home, that lady told my mom कि भाभी जी आप क्यों नहीं ले रही हैं, सब लोग ले रहे हैं। And that was a survey. That was a survey. They came to door कि आपको एलपीजी चाहिए नहीं चाहिए, आपको एलपीजी चाहिए नहीं चाहिए। जो पढ़े लिखे थे, अवेयर थे, उन्होंने तो ले लिया। और उस वक्त जो है गैस का कनेक्शन हार्डली 323-24 रुपए में आता था। ठीक है, तो हमारे घर भी आए तो माई मदर वॉज नॉट सो मच एजुकेटेड, तो मेरी मम्मी बोली नहीं
सर्वे जिन लोगों ने लिया था उस वक्त उनको मिल गया, उसके बाद में एजेंसी आ गया टाउन में, and that agency declared by the newspaper, and within 1.5 year that awareness was so high. अरे गैस के तो बहुत फायदे हैं, किचन में गंदगी नहीं होती, चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, लकड़ी नहीं जलानी पड़ती. बिफोर दैट एवरीबडी वाज बर्निंग द कोल, एवरीबडी वाज बर्निंग द वुड. वी हैड एवरीडे अटेंशन ऑन द सच काइंड ऑफ सोर्स कि कोयला खत्म तो नहीं हो गया, ये लकड़ी खत्म तो नहीं हो गई. एंड आई वाज गोइंग टू द मार्केट टू बाई दैट. मैं वीकली साइकिल से जाता था, मेरे पास साइकिल थी और मैं साइकिल पे जाता था, एक झोला रहता था, उस झोले में हम लोग 5-10 किलो 10 किलो या 5 किलो जैसे भी होता था मैं लाता था. एंड दैट वाज माय जॉब. तो मैं बेटा साइकिल चला के बहुत लाया हूँ, बहुत मैंने साइकिल पे सिलेंडर भी लाया हूँ घर से एजेंसी तक. ठीक है. तो सेकंड थिंग इज दैट 1.5 year later that everybody educated, लोगों को समझ में आया कि गैस तो बहुत अच्छी चीज है, अवेयरनेस आ गया. एंड देन व्हेन एजेंसी डिक्लेयर्ड देन एवरीबडी वाज देयर टू रजिस्टर देमसेल्फ. बेटा मैं भी था. यू कैन नॉट बिलीव, आई वेंट देयर विद माय फ्रेंड्स. हम जितने भी मोहल्ले के स्टूडेंट थे सब लोग, सब अपना अपने घर का राशन कार्ड लेके गए और लाइन में लग गए. यू कैन नॉट बिलीव, मोर देन 2-3 किलोमीटर लॉन्ग क्यू. पुलिस का मैनेजमेंट, ये वो, कोई नहीं घुस सकता. सुबह ही हम लोग पहुंच गए 8 बजे के आसपास. एंड वी डिड नॉट हैव लंच, कुछ नहीं. और इतनी मारामारी, लेडीज जेंट्स बुढ़े. और फिर तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद हमारा नंबर आया और राशन कार्ड पर उसने करा कुछ नहीं, मेरे पापा के नाम लिख के और राशन कार्ड पर ठप्पा मार दिया, एक सील लगा दी गैस वाले ने, धर्म गैस एजेंसी बुलंदशहर, और एक नंबर डाल दिया. 1037 नंबर था हमारा, कुछ ऐसा था. और भैया मैं आ गया. उसके बाद हम लोग जाते रहे और गैस एजेंसी वाला भगाता रहा. वो वहां पर बोर्ड लगा रहता था कि इतने नंबर तक की गैस मिल रही है. तो अप्रोक्सीमेट एवरी वीक मेरे पास साइकिल थी तो मैं घूमता हुआ जाता रहता, देखता हुआ. तो अवेयरनेस का बता रहा हूँ, लोग इस तरीके से अवेयर होते गए कि लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ता गया कि गैस बहुत अच्छी चीज है. एंड देन द डे केम व्हेन वी हैड गैस. और हम लोग, मैं और मेरे फादर जाके गैस का कनेक्शन लेके आए, तो उसने हमें सिलेंडर दिया, गैस के पेपर दिए, चूल्हा हमको वहीं से खरीदना था कि दैट्स मैंडेटरी, कि दैट्स द प्रॉफिट ऑफ द एजेंसी. तो हमने लिया चूल्हा, तो हम आ गए. अब गैस का सिलेंडर आ गया, सब कुछ हो गया. जो गैस का मैकेनिक था वो इतना बड़ा राजा बाबू था कि वो दैट बिहेव लाइक द शाही मैन. कर देंगे, आ जाएंगे, लगा देंगे, जब टाइम होगा देख लेंगे, लिखा दीजिए. तो वो दिन भी आया जब वो आया और उसने करा कुछ नहीं, गैस का चूल्हा लगाया, पाइप काटे और कनेक्शन कर दिया, बोला लाओ मिठाई. यू कैन नॉट बिलीव दैट व्हेन गैस वाज इंस्टॉलिंग एट दैट डे वी हैव टू अरेंज द स्वीट फॉर दिस गाय. फिर वो आया, उसको मिठाई दी, खिलाई, उसको चाय पिलाई, तब उसको 20-25 रुपए देके विदा किया. और वो बोला कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा. तो दैट वाज द टाइम इन इंडिया. एंड हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह कॉमन था. And slowly that everybody was having the gas connection, and then 2-3 new agency came to the town. और उन एजेंसीज का फर्क ये पड़ा कि पूरे टाउन में हर जगह within 4-5 years, 10 years maximum, everybody was having the gas connection. And then there was a survey by the government who is not having gas connection in the town. And everybody said, yes, we have it, we have it, we have it. And that survey was done by the primary school teacher, municipal corporation, and tehsil level officers. And then government expand that agency to the nearby villages. 20 किलोमीटर के एरिया में villages जो हैं वो उस एजेंसी से गैस लेंगे. अब तो अब गांव में पहुंच गया. और right now the condition is very good. हर जगह गैस अवेलेबिलिटी है, गैस का कोई मारामारी नहीं है. लेकिन उस वक्त बहुत मारामारी था गैस का. आपका गैस का सिलेंडर खत्म हो रहा है तो विद इन 25 डेज के बाद, आफ्टर 25 डेज यू हैव टू रजिस्टर फॉर द सेकंड सिलेंडर. आपका गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो 25 दिन बाद, और आपका सिलेंडर 25-26 दिन ही चलता था. तो काफी टाइम हम लोगों को बैकअप में वुडी आइटम, कोल वगैरह रखना पड़ता था कि गैस नहीं होगी तो फिर हम इसको यूज करेंगे. And slowly that gas agency time span reduced,
and right now the story is different. The gas person is coming to home, knocking the door, and ask to my family members whether you needed gas or not. If you need, and then they will give. If you don't need, then they will go to the next door. Door to door जाते हैं without booking. And every day morning the person will go to the chauraya and that having 20-30 cylinders, and that was waiting for the call, and then person will call him कि भैया हमारे यहाँ 2 cylinder पहुंचा देना. Now the condition is different, means that much bulk availability of the cylinders. So that is the development basically that government achieved. जो हम लोगों ने पिछले 20 साल में अचीव किया, that's very good. Our lifestyle was not good, but right now the condition is very good. केबल नेटवर्क आ गया. केबल केम इन 1990 व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड. 90 में आया था केबल, वो भी कॉलोनी वाला केबल था. देन टाटा स्काई, ये आ गया, वो आ गया, वगैरह वगैरह. एंड देन यू सी द डेवलपमेंट इज नाउ एट द ऑप्टिमम लेवल. अब लोग इलेक्ट्रिसिटी भी इतना यूज करते हैं. पहले इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं था, अब 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होता है. इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो अनाउंस करके जाता है, और पहले अनाउंस करके ना जाता था ना आता था. Everything is related to the energy, and now per capita energy consumption also increased because country में power level कुछ तो बढ़ा है. पहले के मुकाबले हम लोग बहुत बेटर कंडीशन में हैं. ओके, तो ये सब चीजें बेटा रखनी पड़ेंगी ध्यान में. तो हम लोगों का क्वेश्चन था कि ये जो गवर्नमेंट ने किया क्या होगा. सौरभ कुमार, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए होंगे. हेलो, गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए. हाँ, आ रही बेटा आवाज, बोलो. हाँ सर, गवर्नमेंट तो सब्सिडी देने लगी सर. पहले योजना की तरह फ्री गैस कनेक्शन देने लगे सर. You are forgetting one thing. The population is in village areas, rural areas, Gramin Kshetra. And that Gramin Kshetra every day prepare the meal, Yes, sir. lunch, dinner, and breakfast. And that was done by the chula. So government launched the improved chula program. Right now that Unnat Chula Abhiyan is going on. Do you know that? Unnat Chula Abhiyan is going on in the country, and that time that improved Chula program was there in the country under the program of the National Program on Improved Chula, NPIC. चलो किसी और से पूछते हैं. अनिल कुमार, हेलो. रोहित कुमार, रोहित कुमार, क्या बात है यार, ये होता ही नहीं. रोहन जिंदल, ये भी नहीं है. आवाज तो आया कुछ. रोहन, हेलो. हाँ रोहन बताओ. सर वो आवाज नहीं आ रही थी आपके पहले भी, इसलिए. हाँ बेटा, ये बहुत कॉमन हो रहा है सबका, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या डिस्कशन था, तो तुम लोग कहते हो आवाज नहीं आ रही है. एक्चुअली द थिंग इज डिफरेंट. आप लोग जो माइक वाइक ऑफ करा के कहीं ना कहीं निकल लेते हो, है ना. इसका इम्पैक्ट तुमको तब पड़ेगा जब तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे, है ना. गवर्नमेंट ने नहीं आ रही थी आवाज. हाँ ठीक है बेटा, इट्स अप टू यू फॉर कॉमन फॉर एवरीबॉडी. ये तो सबके लिए कॉमन है. मेरा बेटा भी क्लास कर रहा है ऑनलाइन, वो भी यही बोलता है टीचर को, मैडम नेटवर्क में प्रॉब्लम था, मैडम आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं क्या करता, मैंने सुना ही नहीं आपका क्वेश्चन क्या था. तो मैं उससे कहता हूँ, मैंने बेटा तुम्हारा बाप भी टीचर है, वो भी पढ़ाता है, तो उसके स्टूडेंट भी यही बोलेंगे. खैर, ये बायोमास में जो लेडी चूल्हा बनाती है, चूल्हे पे काम करती है, और 24 द अप्रोक्सीमेट 80% पॉपुलेशन वाज इन द रूरल एरियाज. तो वो लोग जब चूल्हे पे खाना बनाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी.
है ना। एक तो ये सीधा एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप वुड बर्न करेंगे तो उसका जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। दूसरा, हाँ जी। ये वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड है, वुमेन इसको इनहेल करेगी और उसकी एवरेज एज कम हो जाएगी, उसको लंग कैंसर वगैरह होगा, मर जाएंगी। बहुत केसेस हैं ऐसे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चूल्हे को इम्प्रूव कराया जाए, इम्प्रूव चूल्हा बनाया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इम्प्रूव चूल्हा सेंटर बना दिए। इम्प्रूव चूल्हा सेंटर तो बन गए, अब उन सेंटर का क्या रोल होना चाहिए? सर कि मतलब वही एक तो अवेयर कराएं लोगों को पहले ताकि हाँ वो बिल्कुल, लोग बिल्कुल सही बात है। ना चाहें। अवेयरनेस, करेक्ट आंसर। हाँ जी। और और फिर जैसे एक तरह से उसके बेनिफिट्स और भी होंगे, जैसे मतलब बेटर कुकिंग टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, और फिर फ्यूल चेंज करना है अपने को, नहीं तो उसमें बार बार और भी बहुत मेहनत है बायोमास वाले में सर, बनाना पड़ता है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो सेंटर दिए ये यूनिवर्सिटीज में दिए या रिसर्च पॉइंट सेंटर्स पे दिए? जो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव चूल्हा सेंटर दिया, इसको अच्छी खासी फंडिंग दी। इसमें साइंटिफिक ऑफिसर थे, इसमें साइंटिस्ट थे, इसमें असिस्टेंट थे, इसमें अटेंडेंट थे। So government released the money to the state, and then from the state level nodal agency like that MP में MP प्रदेश, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, यूपी हाँ में जी। उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जैसे गुजरात में जीडा, है ना। तो ऐसे हाँ जी। करके जो जो एजेंसी थी उनके थ्रू पैसा आता था और वो सेंटर स्टार्ट हुए। एंड I was at Indore at the time, and our center was having at least 150 kilometer radius. तो इंदौर के 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर उधर, तो अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर डायमीटर वाज द रेंज ऑफ द सेंटर। एंड द program was like that, as you told, awareness, to inform the benefits, to inform the fuels related issues, and then सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन लोगों को इम्प्रूव्ड चूल्हा के डिजाइन के बारे में बताना कि अगर आप अपने चूल्हे के डिजाइन को ऐसे चेंज कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, देन यू विल नॉट हैव एनी स्मोक, बिकॉज आप चूल्हे का डिजाइन इस तरीके से रखेंगे। आपको जरूरत क्या, आपको जरूरत है थर्मल की, थर्मल एनर्जी चाहिए आपको, स्मोक नहीं चाहिए, आपको थर्मल एनर्जी चाहिए। So you design the stove like that, so your all smoke will go out, and then that smoke will release the carbon dioxide emissions into the space through the roof areas. और उसमें पाइपिंग कर दिया, एक थिंग। दूसरी चीज, सेम सेंटर्स ने क्या करा, तभी हमारे यहाँ पैरेलली हमारे पास बीडीटीसी, इम्प्रूव चूल्हा, एंड थर्ड वन रीजनल टेस्टिंग सेंटर आरटीसी, तीन थे हमारे पास मिनिस्ट्री के। एंड तीनों सेंटर पे एक एक साइंटिफिक ऑफिसर, एक एक साइंटिस्ट और 2 असिस्टेंट, 1 अटेंडेंट थे, राइट? ओके, सो solar that RTC released the solar lighting to the Gramin Kshetra area free of cost, and that was government plan, means, and of course quota was there. So if you are in that quota, that is free of cost, otherwise you have to pay 50% like that, and you have to give your certificate also. आप सेंटर पे आओगे, अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे जो that was approved by the प्रधान, and then you can get it. और हमारे यहाँ पे कौन होते थे, हमारे यहाँ पे वो सिर्फ रिकॉर्ड कर लेते थे, एंड देन रिपोर्ट विल गो टू द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री में जाकर रिकॉर्ड हो जाता था कि एक्स पर्सन के यहाँ लालटेन पहुंच गई, एक्स पर्सन के यहाँ चूल्हा लग गया, वाई पर्सन के यहाँ लालटेन है, लाइक दैट। सो दैट वंस दे गॉट इट, दे कैन नॉट अप्लाई अगेन। ओके, सो important thing is that improved chula got by a person, the same person got the solar laltan. So like that he got 2 or 3 laltan, so those laltan operated by the solar radiation, then PV panel report there, and during night time they just hang on in the kitchen area, or they are having the bulb inside that, and wiring was over there, so then they can prepare the meal as well as their kids can read in the kitchen area। खाना भी बन रहा है और साथ में बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट वाज देयर, एंड दैट वाज मिनिस्ट्री एफर्ट, and government released lot of subsidy for them, and now condition is very well। Second thing is that, like that, this is also related to the deforestation।
So deforestation you can imagine with the help of remote sensing. Remote sensing तुम लोगों को पता ही होगा. So remote sensing is also very important. So government had put eye on it, remote sensing, and when the new plant growth, the government can have the idea that plants increase and is going there. So that means deforestation is not there, and public putting more plants and cutting the less plant trees. So that means the Unnat Chula Abhiyan and then improved Chula program center was working well. Okay. डिस्काउंट भी होता है ना. And third thing, when we had workshop, at least in a year we have to put 3 or 4 workshop, and in those workshops we call the village areas guys to train them how to make the chula, and then they got the learning in 3-4 days, and that was free of cost. उनको खाने पीने आने जाने रहने का सबका पैसा मिलता था, अलग से पैसा उनको अटेंड करने का मिलता था कि आपको 4 दिन का 400 रुपया 600 रुपये मिलेगा अटेंड करने का. ओके. सो इससे होता ये था कि उसमें सपोज 100 लोग आए और 100 में से 10 लोग इंटरेस्टेड हो के साहब मुझे दुकान चलानी है, मुझे डाई दे दो इसकी. तो देन वी प्रोवाइडेड डाई टू देम, एंड देन they developed chula based on this dye, and they have a shop, and we reported in the report that that person is having a shop, and time to time our scientific officer will go to that area to see the actual physical report कि जो चूल्हे हम लोगों ने बनाए थे वो चूल्हे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनमें कम तो नहीं है, कुछ डैमेज तो नहीं हो गया वगैरह वगैरह. अगर डैमेज हो गया तो दैट पर्सन जो शॉपकीपर है वो उसको सॉल्व कर देगा. तो ऐसे करके नेटवर्क बढ़ता गया. नाउ दे आर हैविंग ए वेरी गुड नेटवर्क एंड ऑल आर वेरी हैप्पी. दे इम्प्रूव्ड चूल्हा लॉट. स्टिल दैट प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है with different agency support. And now Unnat Bharat Abhiyan is also going like that. So that improved chula, improved the life of them too much. ठीक है ना. तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है. इम्प्रूव चूल्हा के बारे में, बायोमास के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट वीक भी यही चलेगा. अभी तकरीबन 9 और 10 लेक्चर बायोमास, बायोगैस, बायोफ्यूल इसके चलने हैं. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह दैट पार्ट इज ओवर, और मैं उमंग को स्लाइड भेजूंगा पीडीएफ में और वो आप सब लोगों को शेयर कर देगा. ओके. नाउ यू कैन लीव.